Today is a very special day. Now, with the start of new years, new blessings, new hope, new challenges, new opportunities come. And with that, new resolutions come. Now, in order to make these resolutions and achieve them successfully, we need to apply some strategies in some ways. And that is why today I have come up with 6 ways how you can prevent the failure of the resolutions and goals that you make. So let's get started with the first one. The first one is our why should be clear. Now, most of us make this mistake that we don't ask ourselves that why I am doing this. What is the importance of I doing this thing? We don't ask ourselves and we don't clear our why. We don't get the answer of our why. And if you are not 100% sure about your why, forget about those opportunities, those results that will come. Because if your reason why you want to do that, why is it important for me? If you are not sure at that, अगर आप उस पे 100% sure नहीं है, तो वो आपके लिए अचीवमेंट के लिए, सक्सेसफुलनेस के लिए रीजन नहीं होगा, आपके फेलियर के लिए रीजन बनेगा वो. क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते. तो योर वाई शुड बी 100% clear. The second way is you should be process oriented, not goal oriented. ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा हमें, हमारा गोल को अचीव करके हम क्या करेंगे, सिर्फ उस पर ही फोकस करते हैं. चाहे प्रोसेस कितनी भी हार्ड हो, कितनी भी बोरिंग हो, आपको उस पर लगे रहना है. यू शुड बी फोकसिंग ऑन द प्रोसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज. If you're only focusing on the process, 100% focus, 100% potential you are putting on it, that day would not be far away that you are achieving that goal. Because your mindset should be process oriented, not goal oriented. You should be focusing on the result. Not. You should be focusing on your process, what hard work you are doing. If you are 100% focusing on that, result would be good. Okay, now let's move to the third way, which is to break down your main goal, main dream into small daily tasks. Now, why I'm telling this to you? For example, you have a main goal that you want to lose 25 kgs in 5 months, in the next 5 months. आपका ये गोल है और अब आपको इसके लिए क्या करना होगा. अब एक ही दम से एक ही बार में आप 25 kgs नहीं लूज कर सकते ना वेट. उसके लिए धीरे 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 कंसिस्टेंटली आपको वो करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा. हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, डाइट अच्छी बनानी पड़ेगी, बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी, जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा. तो धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप. ऐसे नहीं कि आपने एक बार खाना कम खाया और आपका वेट 25 kg कम हो गया, ऐसा नहीं होगा. उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो एक ही बार में वो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं. अब क्या करेंगे आप, 25 kg आपको 5 मंथ्स में करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मंथ में क्या करना है, ईच मंथ, पर मंथ हाउ मच वेट शुड बी रिड्यूस्ड, 5 kgs. ओके, 5 kgs पर मंथ. Now what that means is that around 150 to 170 grams per day. तो आपका स्मॉल गोल क्या हो जाएगा, 150 to 170 ग्राम्स मुझे हर दिन कम करना है. इससे क्या होगा, आपने पहला दिन डे 1 आपने उसे सक्सेसफुली रिड्यूस किया वेट. अब दूसरे दिन आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, कल मैंने डे 1 में अपना स्मॉल टास्क सक्सेसफुली मैंने अचीव कर लिया था. अब दूसरे दिन मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैंने कल किया था, आज भी मैं करूंगा. ऐसे ऐसे क्या होगा कि आपका इंस्पिरेशन बढ़ेगा. दूसरी बात, आप गोल के और पास आओगे और ये आपके लिए इजी होगा. आप क्या कर रहे हो, एक बड़े से गोल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर रहे हो. यू आर डिवाइडिंग दैट मेन गोल इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस सो दैट एवरी डे यू कैन डू वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू कैन इजिली अचीव दैट गोल. Okay, so divide your main goal into small daily tasks so that you can achieve them daily and come closer to your big dream or the big goal. Okay, now let's move to the fourth one, which is
set realistic goals. Now many times we make mistake that we set our goals that are not realistic. हम कभी करते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हो अपने अचीवमेंट को, या फिर ओवर एस्टिमेट कर लेते हो कि मुझे 6 महीने में जितना आपको करना था उससे भी आप कुछ ज्यादा ही बोल देते हो जो आप 6 महीने में अचीव नहीं कर सकते, या फिर 6 महीने में जो आप इजीली अचीव करते हो उससे भी लो, बहुत लो आप गोल सेट करते हो. तो इनमें से कोई भी ऐसे नहीं करना है. रियलिस्टिक गोल, जब तक आपका रियलिस्टिक गोल आप सेट नहीं करते हो, टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू set those realistic goals, you will not be able also to divide them into small daily tasks. अगर वो realistic goal नहीं है जो आप अचीव कर सकते हो, the achievable goals can easily be divided into small daily tasks, but the realistic goals which are not the goals which are not realistic, you cannot break them into small daily tasks. You need to set realistic goals. You need to set those goals that can be achieved. हम कभी कभी अपने पोटेंशियल को कुछ ज्यादा समझ लेते हैं कि मैं 1 महीने में इतने ज्यादा पैसे कमा दूंगा या फिर ऐसे कर लूंगा. ये डोंट डू दिस. और लाइक इन 6 months आई कैन नॉट डू दिस. कैन आई सेट द गोल लो है तो उससे भी कम आपकी अचीवमेंट होगी, और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट गोल. तो आपको ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपने सोच लिया और आपका गोल सेट हो गया. उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. आपको अपने खुद के साथ टाइम बिताना होगा. आपको अपने माइंड की प्रोसेस थोड़ी सी इंक्रीज करनी होगी. आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मैं कैसे गोल सेट करूं. अच्छा, रियलिस्टिक गोल सेट करना है, ठीक है, तो मैं इतने महीने में ये कार्य करूंगा, इतने टाइम में ये चीज करूंगा. तो ऐसे में अगर रियलिस्टिक गोल्स बनाओगे तो उससे ही आपका जो आप ब्रेक कर रहे हो उसे चंक्स में, स्मॉल चंक्स और डेली टास्क में जो आप डिवाइड कर रहे हो वो ज्यादा इजी बनेगा, और अचीवेबल जो गोल्स होंगे वो भी आप जल्दी से अचीव करोगे अच्छे टाइम में. ओके, सो लेट्स मूव टू द 5th वन, विच इज कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन. नाउ कंसिस्टेंसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. चाहे वो कंसिस्टेंसी आपकी एकेडमिक्स में हो या फिर चाहे आपकी गोल सेटिंग की अचीवमेंट में हो, या फिर कोई सी भी चीज हो, चाहे आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंटली आपको उसके ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना होगा. चाहे वो इन्वेस्टमेंट मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट टाइम के फॉर्म में हो, वो से आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा. Same here, for achieving that goal, you should be consistent. Now, why I told you to divide your main goal into small daily tasks, so that every day you have a new task, every day you have a goal, so that you have a target for your day. It's not that for the next 5 months I have this target. No, for the next day, for this day I have this target. Live your days in such a way that you are achieving that goal, that main goal, into small targets, because the big battle is the result of those small battles won. Okay, so if you want to achieve that big goal, divide it into small daily tasks so that you are consistent at working hard, you are consistent at building your mindset, you are consistent at achieving that goal in a small way. Every day you are consistent, every day you increasing your growth, every day you are increasing your potential, every day you are increasing how you work for that goal. So every day you are consistent for achieving that goal. If you are consistent, then you will surely achieve that goal. Okay, so you should be consistent for achieving that goal. Consistency should be maintained. Now we reach to the 6th goal, sixth way, which is never give up. हम बहुत बार गलती करते हैं कि हम इजीली ही छोड़ देते हैं उस काम को. ओ, मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं इसे छोड़ देता हूं, मैं नहीं करना चाहता. डोंट डू लाइक दिस. इतनी जल्दी आप अपना भरोसा कैसे खो सकते हैं? Very quickly you are giving up. You should never give up easily, or you should never give up. Now, if I'll share my own
एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, एक दिन मैंने सोचा था कि मैं अब से जर्नलिंग करूंगा, जर्नल लिखूंगा अपनी। मैंने उससे कंटिन्यूसली किया, 1 2 3 डे 1 डे 2 डे 3 मैंने करते रहा कंटिन्यूसली। 8 to 10 डेज के बाद जब मेरा 11th डे था, उस दिन मैं नहीं कर पाया उसे। कुछ रीजन था कि मैं लेट हो गया था, कुछ ऐसा कुछ रीजन था कि मैं लेट होने की वजह से मैं उसे नहीं कर पाया। तब मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अगले दिन कर लूंगा, मैं 12th डे में कर लूंगा। अब 12वें दिन हुआ क्या कि मैं उसे भूल गया करना। इन दिस वे आई डिडंट डू इट अगेन। नेक्स्ट डे आई डिडंट डू इट, and like these next day it slipped into months and those months slipped into 6 months। तो मैंने 6 months से कुछ किया ही नहीं जर्नलिंग का। एक दिन मैंने छोड़ा, छोड़ते गया 6 महीने हो गए मैंने उसे किया ही नहीं। मीन्स अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया तो आपकी हैबिट बन जाएगी छोड़ने की, उसे ना करने की। तो मेरी हैबिट बन गई, 6 महीने तक मैंने उसे किया ही नहीं। फिर तब मैंने एक और दिन सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इतने दिन से नहीं कर रहा था, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। कंटिन्यू किया मैंने, हार्डली 2 से 3 दिन तक मैंने फिर से किया, वो फिर से छूट गया मेरा। क्यों? क्योंकि पहले जब मैंने वो 11 दिन वाला जो मैं छोड़ गया था, मैंने जो छोड़ दिया था, उससे मेरे माइंड, उससे लेकर तक वो 6 महीने तक वो मेरा माइंडसेट बन गया कि मेरी हैबिट बन गई कि मुझे उसे नहीं करना है। तो उस हैबिट की वजह से क्या हुआ कि पहले टाइम पे मैंने छोड़ा, दूसरे टाइम पे छोड़ा, तीसरे टाइम पे, चौथे टाइम पे मैं छोड़ते गया। लेकिन तब मैंने क्या किया, मैंने अपनी गलती निकाली है कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। और मेरी ये गलती थी, मेरा वाई क्लियर ही नहीं था, मैं क्यों करना चाहता हूं। तो मैंने एक दिन अच्छे से बैठा, मैंने अपने दिमाग से पूछा, खुद से पूछा कि मैं ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं, वाई आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग्स, दिस थिंग, why I'm not doing this productive thing, why I'm not doing writing my journal every day. It is important for me, but why I'm not doing it? After getting the answer, जब मुझे इसका आंसर मिले इन सारे क्वेश्चंस का, तब मेरा वाई क्लियर हो चुका था। और जब मेरा वाई क्लियर हुआ, तब से लेकर तक अभी तक मैं अपनी जर्नल लिख रहा हूं। यानी जब मेरा वाई क्लियर हुआ, तब से मैं उसे कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली कर रहा हूं। इसका मतलब आपका वाई शुड बी क्लियर एंड यू शुड नेवर गिव अप। मैंने पहले दिन गिव अप किया, दूसरे दिन गिव अप किया और फिर मैं छोड़ते ही गया। अगर आपने एक दिन गिव अप कर दिया तो ये समझ लो कि आप गिव अप करते जाओगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उस गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहना है, गिव अप नहीं करना है। चाहे आपने एक गोल बना रखा है, चाहे कोई सिचुएशन हो कि आप कहीं दूर जगह पे हो, तभी भी आपको वो गोल करना है, चाहे वो कोई सा भी गोल हो। इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ टू डू दैट गोल, इफ यू आर नेवर गिविंग अप, then only you will be achieving that goal, because you should be consistent, you should never give up and have that mindset of never giving up. अगर वो गोल अचीव हो चुका है, तभी भी दूसरे गोल बनाओ, उनको अचीव करो, लेकिन ये याद रखो कि नेवर गिव अप। अगर आपने एक दिन गिव अप कर लिया तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और अगर आपकी वो हैबिट बन गई तो आप उसे वापस से कभी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले ही उसे स्टार्ट करने से पहले ये सारे 6 वेज जरूर अप्लाई करना। कौन से थे वो वेज? पहला, योर वाई शुड बी क्लियर। दूसरा कौन सा था? दूसरा था प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट, नॉट गोल ओरिएंटेड। थर्ड वाला था ब्रेक योर टारगेट्स इनटू स्मॉल डेली टास्क्स। ब्रेक योर बिगर टारगेट और द मेन गोल इनटू स्मॉल डेली टास्क so that you can achieve them every day. फोर्थ वाला क्या था? फोर्थ वाला ये था कि you need to set realistic goals. Set realistic goals. फिफ्थ वाला ये था कि consistency should be maintained. और सिक्स्थ वाला ये था that you should have a never giving up mindset. इन 6 चीजों के बलबूते पर by applying these 6 things you can surely achieve your goals and you should achieve your goals. कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना कि पहले जो आप गोल्स और अपने जो रेजोल्यूशंस बना रहे थे, वो क्यों आप उस पर फेल हो रहे थे, वो क्यों नहीं आप अचीव कर पा रहे थे, क्या रीजंस थे? वो इन 6 रीजंस में से एक हो, या फिर मे बी इनसे और ज्यादा हो।
इन 6 से अलग कोई और रीजन हो, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको फिर से न्यू ईयर 2022 की शुभकामनाएं देता हूं। इस साल को अपना जीवन का सबसे अच्छे सालों में से एक बनाइए और अपने जीवन को खुशी से जिए। धन्यवाद। बाय बाय।